Hi everyone, this is Bilal Kazmi from IBEX HR team. I am the HR business lead for Islamabad. We have Talal Paracha, Ahmed Mushtaba, and Shiraz Rafiq from different sides of Pakistan. I would like them to introduce themselves. Talal, please. Okay, I've already told my name. I'm the senior manager HRBP for South, Ahmed. Thanks, Bilal and Dalal. I'm Ahmed Mustaba, working as HR business partner for North region for IBEX. Thank you, everyone. Shiraz. I am Shiraz Rafiq, and I'm the manager talent acquisition for the South region. Great. So, guys, the idea and the background of this session will be actually to focus and to empower our youth and to tell them that जो challenges वो face कर रहे होते हैं while applying for the positions या वो skill set से related जो उनकी understanding में कुछ challenges हो सकते हैं वो हम उसके ऊपर बात करेंगे और आप सबका छोटा छोटा मुझे उसमें इनपुट चाहिए होगा जैसे भी आप अपनी टेक साइड से रिलेटेड जिस तलाल का बैकग्राउंड स्ट्रांगली टेक साइड से भी है और कॉल सेंटर सर्विसेज से रिलेटेड भी है Mujtaba have been working for the VP side throughout, and again Shiraz जो talent acquisition look after करें तो आप अपना अपना input उसमें continuously please दीजिएगा. बैकग्राउंड जिस तरह डिस्कस कर सकते हैं पेंडेमिक को लेके चलें अगर तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज होती गई इवॉल्व होती गई मार्केट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती गई तो व्हाट डू यू थिंक एम्प्लॉयमेंट कैसे अफेक्ट हो रही थी एंड उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि हमें आने वाले जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं कैंडिडेट्स हैं उनको क्या समझाना चाहिए दैट व्हाट शुड दे डू एंड माइंड मेकिंग कैसे करेंगे उनकी. Thank you for the question, Bilal. It's a very relevant question for keeping in mind the current situation and, especially keeping in mind the downsizing and the right sizing going on in a lot of companies. But again, for my personal experience has been like the majority of the growth, keeping in mind the BPO industry, IBEX, because it was directly related to the services. So a lot of companies, if we talk about globally, like better, my major growth came in global aspect. So if we talk about the global aspect, a lot of people were basically cutting down on their cost in their own country, in their own regions and everything. So keeping that in mind, so IBEX benefited a lot from that. So they were basically not whatever growth they were planning and doing everything, they were basically outsourcing it to IBEX, and then we came across a lot of growth. And similarly, the case for the call center division, like we came across a lot of new campaigns, the Food Panda, Walmart. So everyone had that thing in their mind because they wanted to encash onto that situation and make sure that we provide all the right services to everyone. So okay, so this is the basic overall what happened during the last 1 year almost. Uh, Regarding how a candidate or an employee or existing employee or an external employee should take advantage from this and take like see the situation is you need to really understand a lot of people are very against switching jobs during this time. They have a very major aspect that we shouldn't switch a job because you never know that they might end up going to, they might end up losing a good job, a good opportunity, and then switching it to another company which they're not familiar with. Obviously Yep. they know the names of the company, but they're not familiar with the culture and everything, and they might end up being laid off. So, but I would like to clarify that. See, a lot of companies are not doing that, but we have to be very much interested in the fact that, or you have to be very much up to dated on the fact that which company is reaching out to you. For example, the BPO industry will never go out of service. Never. It cannot go out of service because the reason is because this is a very service oriented opportunity. Like, for example, if you talk about transportation or if you talk about a freight forwarding company or if you talk about uh, anything which is not directly proportionate or related to services, that company might have some problem, but even then, they're also getting back on their feet now. So I don't think anyone should be worried about that because everyone in HR, us being representative of IBEX, are trying our best to make sure that we uh, ensure that we don't send across a message that where we will be not be hiring anyone for a long time basis. Like for example, Shiraz also have a lot of contractual opportunities. So yeah, I don't think anyone should be worried about that. It's been on its feet since last almost 6 months, back to getting back to normal. Yeah. Yeah, I believe the kind of market we have, there were companies जो कि downsize कर रही थी IBEX. On the other side was actually recruiting resources. I have seen people in the last wave as well जो कि हम recruit कर रहे थे और onboard कर रहे थे जहाँ पे बहुत सारी continuous market में लोगों को downsizing की जो challenges है वो face करने पड़े थे और IBEX was actually recruiting resources. So this is something जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ थी और मुश्तबा can add value in that.
अच्छा, मैं इधर थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस ऐड करूं, राइट? एग्जैक्टली व्हाट जो तलाल हैज बीन सेइंग, व्हेन एक्चुअली द लॉकडाउन स्टार्टेड इन पाकिस्तान, right after that we started hiring. Obviously there are paradigm shifts after pandemic, we all need to understand that, और उसके साथ साथ कुछ जो एक skill set required है in the industries, different set of industries, that is also changing. A message to all the candidates out there कि they need to understand कि किस तरह से like the market is evolving or the industries are changing. Coming from the BPO point of view, we have the like हमारी hiring curtail नहीं हुई, in fact हमारी hiring increase हुई है over this year, both in like the agent level और जो एक supervision and above levels के ऊपर भी आ जाते numbers आ जाते हैं हमारे. कंसिडरिंग एक और एस्पेक्ट कि इट्स बहुत सारे अक्सर दफा लाइक जब मैं कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज हम लोग कंडक्ट कर रहे होते हैं तो समहाउ दे थिंक इट्स अ शॉर्ट टर्म जॉब या इट्स अ one thing they need to understand, it's a proper career they can have there. We have candidates from the best universities across Pakistan and around the globe as well. उसके अलावा like people have been here for let's say 20 or even 20 years with us, like they started at the very grassroots and have like made their careers out here and like heading this organization for us now. So this is the message. Ultimately, with the time, हर थोड़े अरसे बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मार्केट के अंदर एक चेंज आता है, पेंडेमिक हो या ना हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, एवरी प्रोफेशनल आउट देयर कि वो जो स्किल सेट की जो रिक्वायरमेंट है, इट नीड्स टू बी अपडेटेड एंड वी कीप एडिंग इट ऑन आवर रिज्यूमे टू बी लाइक एक्टिव इन द मार्केट. Agreed. Thank you, Zabardast. Shiraz, I would Yeah. like you to add that 2020-21 में यूथ को क्या अपॉर्चुनिटीज आपको लगता है मिल रही होंगी या मिलेंगी, बिकॉज इट्स द न्यू नॉर्मल नाउ. कोविड इज द न्यू नॉर्मल. वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट फैक्ट कि अब सिचुएशन चेंज हो गई है. वी हैव टू कम विद द मास्क एंड एवरीथिंग. आपको वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी भी एवेलुएट करनी है, देखना भी है, जाना भी है मार्केट में, और देखना जिसमें आप वर्क एट होम वाली चीजें काफी सारी हो गई हैं, ऐड हो गई हैं. तो व्हाट डू यू थिंक एज इन 2021 में अब हमें जो अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए क्या नजर आ रही हैं? Acha, from my perspective, I would say 2021 is inshallah going to be better in terms of this pandemic, because आप हम सब ने we have witnessed कि हमारे मुल्क में we have been blessed अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कोविड ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया था, अल्लाह का शुक्र है. और आई थिंक 2021 विल बी बेटर इन टर्म्स ऑफ दैट पैंडेमिक. अभी हमारे पास वायरस वैक्सीन भी शुरू हो गए हमारे. आज ही मैं देख रहा था फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ ले गए. तो 2021 के लिए आई एम प्लानिंग, और या मे बी आई कैन फोरसी कि हम लोग उस न्यू नॉर्मल से इंशाल्लाह वापस जो नॉर्मल है उस पर आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला वेरी सून. तो कैंडिडेट्स और हायरिंग हमारी इंडस्ट्री में चलती रहेगी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी इंडस्ट्रीज भी रिवाइव होंगी. बट वन थिंग दैट आई वुड डिस्कस विद यू ऑल के हमारे पास ना इन 1.5 साल इन 2 साल के टेन्योर में एक बहुत अच्छा मैसेज गया पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट, और वो ये था कि हमारे जो फोकस था ग्रेजुएट्स का और हमारी टैलेंट का जो अवेलेबल था जॉब मार्केट में, वो एक स्पेसिफिक सेक्टर होता था, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री होती थी कि यार इफ आई एम गोइंग टू बी अ बीबीए क्वालिफाइड और एन एमबीए क्वालिफाइड पर्सन, मैं इस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ इंशाल्लाह. वो इंडस्ट्रीज कंपेयर टू आर्ट्स, उनमें उनको हिट मिली, हमें इंशाल्लाह पॉजिटिव हिट मिली और इंशाल्लाह मिलेगी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. तो वो चीज़ मुझे लगता है एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज गया इन द जॉब मार्केट कि इट्स नॉट जस्ट द फ्यू इंडस्ट्रीज जो हम कन्वेंशनली एज अ जॉब सीकर हम टारगेट करते थे. देयर आर मल्टीपल अदर इंडस्ट्रीज, जैसे कि अहमद ने बोला एंड तलाल ने बोला कि वी आर अ करियर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. तो 2021 बिलाल, इफ यू आस्क मी एंड द ऑडियंस आउट देयर, इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह इवन बेटर फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एज वेल एज दिस पेंडेमिक सिचुएशन इंशाल्लाह. एग्जैक्टली और मेरे ख्याल से जो हम साइलोज में चले गए या हमने क्वारंटीन मेंटेन करना शुरू किया या जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया कि मेरे ख्याल सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ से अगर हम स्टिक करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू का अंदाज़ा होता है. हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ हम चले गए थे. और इसी तरह जॉब मार्केट की भी जैसे आपने बात की कि अब लोगों ने और इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और अपॉर्चुनिटीज़ को. इवन फ्रीलांसर्स जो हैं उनका एक नंबर बढ़ गया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ के दे वर एट होम, दे वर वर्किंग फ्रॉम देयर होम. सो उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स लिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना होने थे और वो हमने उसमें अपने स्किल्स को यूटिलाइज किया. और जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है या वेब डेवलपमेंट हो सकती है या एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो सकती है या जिस तरह कॉल सेंटर सर्विसेज को आईबेक्स ने एक पूरा शिफ्ट दे दिया कि आवर रिसोर्सेज वर वर्किंग विद अस बट दे वर वर्किंग फ्रॉम होम. सो हमने उनके जो सिस्टम्स हैं, जिस तरह लोगों के ऑब्सोलीट सिस्टम्स थे तो उन्होंने अब इस दौरान में अपग्रेड कराए और उनको रियलाइज हुआ कि उनके जो 2000
15 के सिस्टम से उनमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी जो अपग्रेड होनी थी, तो लोगों ने करवाया, काइंड ऑफ उनके लिए यूटिलाइजेशन भी थी, बेटरमेंट भी थी, और साथ साथ ये भी कि उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया और फर्दर ग्रो किया। अच्छा, जस्ट वांट एक पॉइंट आप लोगों को सबसे शेयर कर दूं कि आई एम इन अ कन्फाइंड रूम और मैं इस वक्त पब्लिक प्लेस में नहीं हूं, तो आई एम नॉट वेयरिंग मास्क, प्लीज डोंट जज मी फॉर दैट कि मैं मास्क नहीं पहन रहा। मैं एक्चुअली इट्स अ कन्फाइंड रूम और कोई नहीं है यहाँ पे। I think we all are sitting in a confined room and we are taking all the Yeah. precautions. Thank And you. yeah. And the best part about IBEX was that in this whole time frame जब हम पेंडेमिक की सिचुएशन में गुजर भी रहे थे, पिछली वेव में और इस वेव में भी, तो we were the organization जिसने हर वो प्रिवेंटिव मेजर पहले लिया जिसके लिए किसी एक रिसोर्स को नुकसान हो सकता था. वी वर मेकिंग श्योर दैट सोशल डिस्टेंसिंग इज देयर, सैनिटाइजिंग एंड वेयरिंग दीज ग्लव्स वर देयर, वेयरिंग मास्क वाज द आइडिया कि हम कंटिन्यूसली अगर कोई काम कर भी रहे हैं और हम मार्केट में आ भी रहे हैं या हम लोगों के साथ किसी ना किसी वजह से इंटरेक्ट भी करना पड़ रहा है, तो वी वर एक्चुअली वेयरिंग ऑल दीज थिंग्स जो कि हमें किसी भी स्प्रेड से बचाएं. आप सब भी फॉलो कर रहे थे, हम भी फॉलो करते, तो मेरे ख्याल से एक मैसेज और हमारी ऑडियंस को भी जाना चाहिए दैट इफ वी एंगेज रिसोर्सेज टू वर्क ऑन साइट, तब भी हम इंश्योर करते हैं कि उनकी हेल्थ, उनकी वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो खराब ना हो, उनकी फैमिली को कुछ चांसेस ना जाएं उसके. आई वुड लाइक यू गाइज टू टेल द रिसोर्सेज की जो इंटरव्यूज वो दे रहे हैं या देते हैं, आप लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, स्किल सेट से रिलेटेड क्या अंडरस्टैंडिंग उनको देना चाहोगे, और क्या जवाबात होंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड गिव टू अस व्हाइल वी आर कंडक्टिंग दीज इंटरव्यूज. I'll like to answer that. Okay. I think it's getting a lot better now. I mean, पहले थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें, I mean, I'm not saying I won't say that we have a problem with it, but we would like the candidates to be very, very well prepared. But not in terms of the job role, but in terms of the company. Like they should know which company they're giving the interview. I mean, this is regardless of wherever you go. You should know exactly where the company. कैसे डेवलप करें? एक लेमन एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, आई जस्ट आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड मुझे क्या टिप्स देंगे आप कि मुझे क्या करना चाहिए? Okay. The first thing I would like to say is कि अगर आप ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, मतलब be at any university, तो I'm assuming everyone has internet, right? Everyone has connectivity, right? So there nowadays, especially after, I mean, और ज़्यादा enhance हो गया after COVID. There's no such information which you cannot gain on internet. There's every single thing. अब अगर आप IBEX को सर्च करते हो या हमारे किसी भी क्लाइंट को सर्च करते हो, तो सिर्फ आपको कंपनी की पेज नहीं मिलता, कंपनी के पेज के ऊपर जाके आपने बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, but the whole idea is to study the articles on those companies. What exactly is happening, because the articles are normally very updated. जो आपको सर्च करते हो गूगल पे कहीं पे भी, तो आपको बहुत आर्टिकल बहुत सारे आते हैं, you get the updated news on that कि IBEX क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल, और फला कोई भी any company. I mean, this is the generic suggestion कि आप कंपनी के बारे में होना चाहिए firstly. Secondly, अगर आपको कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, तो आपको पूरा राइट है ये पूछने का कि इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन आप मांग सकते हो, लेकिन कोई कंपनी कॉन्फिडेंशियलिटी की बेसिस पे नहीं शेयर करते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम. अगर नहीं मिलती तो आप कम से कम इनसे ये पूछ सकते हो कि आपके स्किल सेट्स क्या रिक्वायर्ड है, स्किल सेट्स क्या चाहिए आपको, एक्सेल चाहिए या आउटलुक चाहिए या पावर बीआई का टूल चाहिए, या आपको एक्सेल है या सीक्वल है या एनी ऑफ द सेल्सफोर्स है, तो यू कैन आस्क देम अबाउट दैट. तो या कम्युनिकेशन की क्या एट्रीब्यूट है, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, चाहिए, एग्जैक्टली एक्शन कौन सा होना चाहिए, या एक्शन कौन सा नहीं, एक्शन कौन सा होना चाहिए वो भी आप यू कैन गेट as much information as you can. एंड एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि अब जब आपको दो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कंपनी का बैकग्राउंड और स्किल सेट जो रिक्वायरमेंट है. एंड यू नो, आप आधी वाला चीजें जो है वो अपने टाइटल से आप बता सकते हो कि डेटा एनालिस्ट का रोल है, या चैट सपोर्ट का रोल है, या हमारे फार्मासिस्ट हैं, या ऑनलाइन डॉक्टर है. तो यू अंडरस्टैंड अ लॉट. हम वी टॉकिंग अबाउट टिपिकल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, we're not talking about a layman. Over here we're talking about a typical university graduate जिनको basic information तो होती है चीजों. तो उसमें जब इन चीजों के ऊपर आप प्रिपेयर करके आएंगे, तो it will be a lot easier for you to give your answers to a question. अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप गलती से किसी और इंटरव्यू में चले गए तो और बात है, लेकिन अगर you coming in for the right interview, then you should have the base. दो information होना बहुत जरूरी है. If you don't have that information, then obviously फिर मुश्किल हो जाता है. फिर obviously कभी कभार शिराज की टीम में अभी कॉन्टैक्ट सेंटर की एजेंट की हायरिंग करते हैं, तो इनके लिए तो टाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ये लोग. दे हैव टू बी वेरी क्विक ऑन दैट, बिकॉज बल्क हायरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. तो बेहतर है कि इन दो चीजों पर फोकस करें, एंड उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन मिले दैट्स ऑलवेज वेलकम, बट दीज टू शुड बी द मेन.
ओके मुस्तफा, व्हाट डू यू थिंक एज एन बीपीओ की इंडस्ट्री में जो आप सपोर्ट डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करते हैं और उनकी रिक्रूटमेंट चल रही होती है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द स्किल अच्छा सेट यू लुक फॉरवर्ड? अच्छा, एक जेनेरिक चीज जो लाइक दैट गोज फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर बीपीओ, कि हाउ यू मेक योर सीरीज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई जॉब कहीं भी पोस्ट हुई होती है किसी भी फॉर्म के ऊपर, कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन उसकी, कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन जरूर दी हुई होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई होती है। तो कैंडिडेट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जो रिक्रूटर है वो उन्हीं स्किल्स के ऊपर उन्हीं को टारगेट कर रहा होगा आपकी सीरीज के अंदर। जनरली एज रिक्रूटर हमारे पास 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स ऑन एवरेज होते हैं टू रिव्यू वन सीवी, अनलेस कि रिक्रूटर को वो जो मेन पॉइंट्स है, जो पिन पॉइंट्स है, जब आपकी सीवी में नहीं मिलते तो ही विल एक्चुअली मूव ओवर टू द नेक्स्ट सीवी, कंसीडरिंग स्पेशली अगेन फॉर व्हेन इट्स द मैस रिक्रूटमेंट या टैलेंट एक्विजिशन के लिए टाइम और भी कम हो जाता है। तो मेक योर सीवीज अकॉर्डिंगली, उन पॉइंट्स को कंसीडर करें, प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली फॉर द इंटरव्यूज। प्लस एक और चीज है, आजकल ऑब्वियसली वी ऑल हैव सोशल मीडिया अकाउंट्स, इसके ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ सोर्सिंग दैट हैपेंस थ्रू लिंक्डइन। जनरली एवरीवन गेट्स द मैसेज जिसमें रिक्रूटर्स आर हंटिंग। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अकॉर्डिंगली अपडेटेड है, कि जिस तरह की आप जॉब सोर्स करना चाह रहे हैं, सो दैट कि जो लाइक जो कंपनीज हैं दे कैन अप्रोच यू लाइक दिस इज द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर। फॉर इंस्टेंस अगर कोई समवन इज एक्सपर्ट इन डाटा एनालिटिक्स, तो ही नीड्स टू इंसर्ट लाइक एक्सेल वगैरह उसको आता है, एक्सेल में किस तरह की स्किल्स उसको आती हैं, किस तरह के फॉर्मूलाज उसको आते हैं, पावर बीआई इज वन ऑफ द न्यू थिंग इन द मार्केट। तो लाइक उसको कितनी आपकी उसकी एक्सेसिबिलिटी है, कितनी आपकी उसके ऊपर कमांड है। सिमिलरली अगर एक पार्ट दैट वी ऑलवेज एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड, दैट इज द कम्युनिकेशन एक्चुअली। जब आप इंटरव्यू के अंदर हैं, कम्युनिकेशन का मेन, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, एक ही मतलब है कि आप अपनी बात कितने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं टू द इंटरव्यूअर। द मोर स्पेसिफिक इट इज, और जितनी वो क्रिस्प और शॉर्ट है उतना ही लाइक इट विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू। जनरली इट इज परसीव्ड कि आप बात को लंबे सेंटेंसेस या बहुत ज्यादा कोई लाइक हाई इन वोकैबुलरी यूज करें। इट माइट हेल्प इन सर्टेन केसेस, बट 99% ऑफ द केसेस में दैट्स नॉट व्हाट द रिक्रूटर इज एक्चुअली लुकिंग फॉर। सही सही। मैं चाहूंगा शिराज से कि वो जो डोमेस्टिक की रिक्रूटमेंट करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका, और व्हाट डू यू थिंक कि लोगों को क्या प्रेजेंट करना चाहिए, क्या बताना चाहिए, और आप ज्यादा एक्सपीरियंस क्या करते हो कि चैलेंजेस जो आते हैं लोगों की तरफ से? अच्छा, मैं थोड़ा सा रोल क्लैरिटी दे दूं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डोमेस्टिक प्रोग्राम्स, इट्स ऑल अबाउट द इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एज वेल। सारी चीज़ें जो हैं वो कराची से हम बैठ के हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। माशाल्लाह सारी चीज़ें तलाल भाई ने, अहमद ने वंडरफुल कवर की हैं। मेरे ख्याल से मैं उसमें कोई मजीद चीज़ ऐड नहीं कर सकूँगा। एक चीज़ मैं बिलाल जस्ट शेयर करना चाहूँगा तमाम कैंडिडेट से, हूएवर जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो, चाहे वो हमारे पास आ रहा हो, किसी कंपनी में जा रहा हो, मैनेजर लेवल पे जा रहा हो, एजेंट लेवल पे जा रहा हो, इवन हेड पे जा रहा हो, आप लोग अपनी एग्जाम्पल इसमें नोट सकते हो। ऑलवेज विन द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द इंटरव्यू। आपने सामने वाले बंदे को जीतना है। वो जो 15-20 मिनट या आधे घंटे का इंटरव्यू है ना, आपने उसको जीतना है, किसी का भी। अब दैट इज, आप मामून बोलते हैं ना इंटरव्यू में कैसे आपको जज करना है कैंडिडेट को, नहीं, मैं समझता हूँ इसकी रिवर्स साइड है। कैंडिडेट हैज टू जज एज वेल कि यार जो मेरा इंटरव्यूअर है ना वो क्या सुनना चाह रहा है, क्या सुनना चाह रही है। वहां ही और शी शुड बी स्मार्ट इनफ कि वो उसको जज करे और उसको वो मैसेज देने की कोशिश करे थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, एवरीथिंग, कि यार मैं अब जो ना, आई एम ऑल इन फॉर दिस, आई एम ऑल फॉर करियर। बाकी टेक्निकल नॉलेज, हमने कम्युनिकेशन स्किल की बात की, आई थिंक दैट पार्ट इज कवर्ड। बिलाल, थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस। अच्छा, आई बिलीव देयर आर टू मेजर एरियाज जो कि आप सबने भी कवर किया, और उसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई मैं कर सकूंगा। एक तो जॉब स्पेसिफिकेशन है, बिकॉज ज़्यादातर हम जब जॉब पोस्ट करते हैं, आप सब भी और मैं भी, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिखने में इंटरेस्टेड होते हैं स्पेसिफिक। जिस तरह मैं कम्युनिकेशन की बात करूंगा, तो कम्युनिकेशन में किस एक्सेंट की बात होगी, कितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है, या टाइपिंग स्पीड की ज़रूरत हो सकती है, या सिस्टम हैंडलिंग की ज़रूरत हो सकती है, या कोई और स्किल सेट या एक्सेल की ज़रूरत हो सकती है। तो वी नीड टू मेक श्योर एज एन एप्लीकेंट, या आप सब जो भी सुन रहे हैं, कि आपका स्किल सेट उसको मैच करता है या नहीं करता। बिकॉज इससे आपका भी टाइम सेव होगा, आपको इंटरव्यू देने जाना है और आप जाके सिलेक्ट ना हो, तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग एंड गिविंग दैट इंटरव्यू। एंड जो सिलेक्ट कर रहा है उसके लिए भी ये चीज़ एक हैसल होती है कि आपको इंटरव्यू लेने के बाद पता चला कि ये रिसोर्स तो एज पर द स्किल सेट रिक्वायर्ड ही नहीं था, या वो गुड फिट नहीं था। सो अपने आप को खुद सेल्फ I would एवेलुएट like करें। to thank you. Sorry, Bilal, please carry on, and then I would या like to add something. एंड सेकेंड थिंग इज मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंटरव्यूअर, जो कि अभी शिराज ने भी कहा कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि ओपन एंडेड होते ही इसलिए कि आप अंडरस्टैंड करें कि कंपनी का क्या चैलेंज है या क्या रिक्वायरमेंट है, और आप उसमें कहाँ फिट होते हैं एज अ रिसोर्स। आप उसको एक्सप्लेन करें कि आपकी ये ज़रूरत है
और मैं यहाँ पे इस तरह फिट होता हूँ, या इस जॉब रोल के लिए मेरे स्किल सेट कैसे एलिजिबल हैं या मेरी एलिजिबिलिटी कैसे हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली जब जो इंटरव्यूअर है, जो कैंडिडेट के असेसमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं सामने, वो अवेलुएट यही कर रहे होते हैं कि क्या ये बंदा उस रिक्वायरमेंट को, उस पोजीशन को फुलफिल करता है, एंड अगर करता है तो ही आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं और नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। शिराज, आप तलाल, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया, वेरी सॉरी अबाउट दैट। मैं ये ऐड करना चाह रहा था शराफ की बात के ऊपर कि मतलब शराफ के ऊपर और लाइक ऑन द बिहाफ ऑफ आईबेक्स, हमारा जो रिक्रूटमेंट का जो मीडियम है ना, आप अगर उसको क्लियरली अगर मैं आपको समझाऊं तो उसमें जो पुराने तरीके होते थे जमाने के, वॉक इन इंटरव्यू होते थे, जो आजकल बहुत लिमिटेड होते हैं, हमारे लिटरली इतने डिफरेंट मीडियम आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेंगे आपको। मतलब वॉक इन इंटरव्यू भी होते हैं, शेड्यूल भी होते हैं, लिंक्डइन पे भी है, रूजी पे भी है, फेसबुक पे भी है। अब लिटरली आई मीन बहुत सारे तो शायद मुझे भी ना पता हो कि इतने सारी जगह पे हमारे ऑलरेडी पोस्ट हो रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट अगर आपको पोस्ट नहीं मिल रही या आपको जॉब रेलेवेंट नहीं जॉब मिल रही या कुछ हो रहा, तो आप यू कैन इजीली वॉक इन। एम आई राइट सर? अमित, आई थिंक लाहौर में भी हमारा या एग्जैक्टली ऐसे ही है, कराची में भी ऐसे ही ऐसा है। ही है। तो यू कैन इजीली वॉक इन। देखो किसी को कोई हम जो हमारी जो जो रीजनिंग है या हमारी जो बेसिकली जो फैसिलिटी है वो ये है कि किसी को कोई बहाना ना मिले या एक्सक्यूज ना बना सके कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही। मतलब आप आगे वॉक इन इंटरव्यू दो। आपकी अब ये तो नहीं है कि आपको वॉक इन इंटरव्यू आपने दिया तो आपकी सीवी देखेंगे, आप अपनी अपडेटेड सीवी लेकर आए। आई विल डेफिनेटली एग्री विद अहमद ऑन दैट कि सीवी अपडेटेड होने चाहिए, रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलावल की इन्फॉर्मेशन डालनी नहीं चाहिए उसमें। तो वॉक इन इंटरव्यू भी होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पे अगर मेरे सामने भी अगर कोई कैंडिडेट आके बैठ जाएगा ना मेरे रूम में, तो मैं उसको भी इंटरव्यू कर लूंगा। ओके देयर दलाल इज भाई, नो आई एम हार्म कमिंग इन इन दैट। राइट नाउ सर, आई एम कमिंग इन, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मोहन मिल गया यार, एनी टाइम एनी अच्छा, एक टाइम। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और भी है जिसको आईबेक्स ने एज एन इंडस्ट्री ग्रोथ की तरफ लेके जाने की कोशिश की, या पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जाने की कोशिश की, जिसको गेमिंग साइड कह सकते हैं। हमारे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि गेमिंग साइड पे जा रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी गेमिंग तो होती थी, लेकिन पाकिस्तान में शायद उनको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल रहा। तो आईबेक्स ने अभी रिसेंटली एक गेमिंग कॉम्पिटिशन करवाया, जो कि बहुत सारे डिफरेंट वॉलंटियर्स ने प्ले किया, और उसके बाद उससे बहुत सारे उनको आउटकम ये भी नजर आए, जिस तरह मुझे पता है कि मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है और मैं गेमिंग के लिए यूटिलाइज हो सकता था, लेकिन इवेंचुअली आई रियलाइज कि दिस टाइपिंग स्पीड कैन बी यूज समवेयर एल्स एज वेल। तो मेरी जॉब अपॉर्चुनिटी अगर मुझे नजर आएगी जहाँ पे मुझे सिर्फ टाइपिंग स्पीड की जरूरत है, तो आई कैन यूज दिस स्किल सेट देयर एज वेल। सेम इज द केस विद एक्सेल, सेम इज द केस विद कम्युनिकेशन एज वेल। और इंटरनेशनल मार्केट में जो लोग गेमिंग में जाते हैं उनको कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, दे आर एक्चुअली वेयरिंग दोज हेडगियर्स एंड वो काम कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। तो साथ साथ यही चीजें उनको पता चलती हैं कि ये कॉमन स्किल सेट कहीं और भी यूज हो सकता है, जो कि उनके लिए बेहतर हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है हुनर फाउंडेशन के नाम से, आई बिलीव आप सब भी जानते हैं, और द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली द एप्लीकेंट्स और द कैंडिडेट्स जो आर इन द मार्केट, वो भी जाने कि हुनर फाउंडेशन के साथ आईबेक्स ने एक एमओयू साइन किया हुआ है, जहां पे हमने कोशिश की है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्री इंटरव्यूज डेवलप करें, ताकि अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो वो स्किल सेट या वो अंडरस्टैंडिंग उनकी पहले से डेवलप हुई हुई हो, माइंडसेट वैसा हो जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, या हमारी जॉब रिक्वायरमेंट है, या आईबेक्स की रिक्वायरमेंट है, वो उस तरह फुलफिल हो। इससे स्किल सेट मैपिंग भी हो जाएगी रिसोर्सेज की, और साथ साथ ये भी कि हमारे लिए जो आने वाले रिसोर्स उनका एप्लीकेशन के बाद सिलेक्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप सबके लिए भी, और अगेन जो जो वहाँ पे काम करें एज एन हुनर फाउंडेशन में, उनके लिए भी ये एक बड़ा वेंचर है या एक बड़ा कोलैबोरेशन है जो कि मेरे ख्याल से यूज हो रहा है। इसके अलावा यूथ डेवलपमेंट में जिस तरह हमने अभी रिसेंटली एसओएल के साथ एक कोलैबोरेशन की और हमने यूथ डेवलपमेंट के लिए काम किया, आईबेक्स इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द यूथ जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, और उनको कंटिन्यूसली ये बताता है, कोशिश करता है, हेल्प करता है कि हम आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, एलिवेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप अपने किसी भी स्किल सेट के साथ, स्पेसिफिकली जिस तरह ग्रेजुएट्स हैं आप यूनिवर्सिटीज के, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को डिग्री के साथ जॉब मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका एक स्पेसिफिक स्किल सेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होता है, तो हम वहाँ पे बहुत दफ़ा एक्सेप्शन भी क्रिएट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को मौका दें जो इंटरनेशनल मार्केट में जाके इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकें, अपने स्किल सेट को यूटिलाइज कर सकें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में अगर तलाल और अहमद मुश्तबा आप कुछ ऐड करना चाहें, जो आईबेक्स के फोरम पे भी होती रहती हैं, जो एक्टिविटीज़ हम रेड क्लब के से फोरम से करवाते रहते हैं या HRBP के प्लेटफॉर्म से कराते रहते हैं, उस पर अगर थोड़ा सा ऐड वैल्यू करें तो।
अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करूं, जितना थोड़ा सा आईबेक्स की पर्सपेक्टिव से मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इजंट एनी पॉइंट ऑफ द ईयर जब हम लोग हायरिंग नहीं कर रहे होते, तो समहाउ लाइक हमारी हायरिंग रिक्वायरमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा है कि हर लेवल के ऊपर हमारे पास कोई ना कोई ओपन पोजीशंस होती हैं। जितनी इंपॉर्टेंस हमारी हायरिंग की है, साइमल्टेनियसली इक्वली इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक अपने टैलेंट को डेवलप करना होता है। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, लाइक थ्रू आउट द ईयर देयर आर मल्टीपल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, फिर इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या इंटरनल प्रमोशन प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू एजेंट्स के पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है इफ दे हैव टू ग्रूम देमसेल्व्स। एक्सेल स्किल्स हो, कम्युनिकेशन पार्ट हो, लाइक वी हैव ट्रेनिंग्स फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। इनफैक्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने जो इंटरनल टैलेंट है उसको प्रमोट कर सकें, लाइक फ्यूचर पोजीशंस के ऊपर ला सकें, सो दैट पीपल कैन ग्रो एंड बिकम सीनियर लीडर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। Baki, IBEX is a fun workplace. All over the social media, you can see multiple like videos or platforms जहाँ पे भी like हम लोगों की initiatives आ रहे होते हैं, वो scavenger hunts हों, इनफैक्ट एक पूरा वीक अक्टूबर के अंदर सेलिब्रेट a complete week just to appreciate all these people. उसमें minute to minute games हैं, बट थ्रू आउट द ईयर मेरा ख्याल कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिसके अंदर कोई ना कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी या फन एक्टिविटी IBEX के अंदर अक्रॉस ऑल थ्री साइट्स ना हो रही हो। Talal I can add agree. further to it. Yeah. Okay. Thank मेरे you, ख्याल Ahmed. से Yeah. Please, Bilal. तलाल प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं, please carry on. I think Ahmed covered a majority of the point जो मैं बोलना चाह रहा था, तो All right, I would like to add one thing here, यार। Bilal, thank you for the lovely question and thank you for the input, Ahmed। मैं इंटरनल जॉब्स की बात कर रहा था, तो हमारी अपनी रिक्रूटमेंट टीम में भी ना हम लोग जब वहाँ पर रैम्प बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो आई नीड टू एक्सपेंड द हेड काउंट। तो हम लोग के पास भी जो वी हैव पीपल जो कस्टमर सपोर्ट पे हायर हुए हुए थे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक में, एंड दे वर्क एज अ रिक्रूटर्स फॉर 6 months 7 months, उनसे उनका एक्सपोजर पड़ता है, एंड आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी IBEX इंटरनल जॉब्स के थ्रू ही देता है। सेकेंडली, दूसरा पॉइंट ये कि हम लोग जब फर्स्ट इंटरव्यू करते हैं लोगों का, सेकंड इंटरव्यू करते हैं, तो देयर आर पीपल जो कि बहुत अच्छे स्किल सेट वाले होते हैं, उनको कन्विंस करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है व्हेन वी टेल देम अबाउट द इंटरनल जॉब्स प्लान, कि वो अगर 1 साल या जो भी 6 महीने का प्रोग्राम है उसके बाद हमारे पास आते हैं तो दे कैन एक्चुअली मूव टू अदर डिपार्टमेंट्स और इवन बिकम अ सुपरवाइजर। हमारे पास करंटली बिलाल एंड एवरीवन नोज कि हमारे डायरेक्टर्स हैं करंटली हु जॉइंड दिस कंपनी ऑन द एंट्री लेवल पोजीशन, और आज वो डायरेक्टर्स हैं। तो वो एग्जांपल्स बहुत अट्रैक्टिव होती हैं उन लोगों के लिए हु आर एक्चुअली करियर ओरिएंटेड। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। थैंक यू। एग्रीड। इनफैक्ट जो HRBP के फोटे में हम या पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं, वो एक और मजेदार चीज़ ये भी है कि पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द एजेंट लेवल, इनको हम जॉब रोटेशन दे रहे होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से, सो दैट दे कैन एवेलुएट देमसेल्व्स एंड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि आपको अगर एक स्किल सेट के साथ आपने जॉब ज्वाइन कर लिया एज एन कॉल सेंटर एजेंट, तो आपको इसके बाद किस डिपार्टमेंट में जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, या किस तरह आपको वो आपका स्किल सेट हेल्प करेगा किसी एक डिपार्टमेंट में क्वालिटी में एवेलुएट करने के लिए, या WFM का जो डिपार्टमेंट है, या किसी और ऐसे डिपार्टमेंट की बात करें, रिक्रूटमेंट की बात करें, टैलेंट एक्विजिशन की बात करें। सो दे पीपल हैव दैट स्किल सेट, दे हैव दैट डिग्री, बट वो जब स्टार्ट करते हैं तो वो कॉल सेंटर एजेंट से स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव दैट करियर लेडर फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल, जिन्होंने, जैसे आपने शिराज ने भी मेंशन किया, दैट वी हैव पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी नाउ, बट उन्होंने ज्वाइन किया था एज एन ग्रास रूट लेवल पे, और आहिस्ता आहिस्ता IBEX ने और IBEX के साथ साथ उन्होंने अपनी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट पे इतना फोकस किया, और हमने उनको माशाल्लाह एक सीनियर पोजीशन पे देखा और अब देख रहे हैं। सो अगेन मेरे ख्याल से विद ऑल दीज वंडरफुल इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस एंड सजेशंस, वी शुड conclude this session here, that our resources and our opportunities are there in the market. All we need to do is to step out and make sure that we just start grabbing these opportunities, making sure that हम IBEX and IBEX की तरह की और जितनी developing industries हैं उसमें अपने आप को, अपने skill set को लेके चलें और further growth की तरफ जाने की कोशिश करें। अगर हमें लगता है कि कोई challenge है, तो again we have our social media team here and on Facebook and everywhere. You can just write it to us and we रेस्ट ऑफ द जो सीनियर मेंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं आपकी हर प्रॉब्लम को सुनने के लिए और उसके ऊपर कोई ना कोई सजेशन देने के लिए। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल भी होगा तो यू कैन जस्ट राइट इट टू अस एंड विल ऑल बी देयर टू हेल्प यू ऑल। Thank you very much, Shiraz. Thank you very much, Ahmed Mujtaba, and thank you very much, Talal, Thank you, IBEX, for being and मेरे ख्याल से let's call it पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अपनी तरफ से कह देते हैं thank you IBEX and पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहते हैं? Thank you IBEX, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you guys. Allah Hafiz. See you around. Thank you viewers. Thank you everyone. Thank you. Take care. Thank you. Thank you Allah everyone. Hafiz जी। Allah Hafiz. आप सबका बहुत शुक्रिया।